بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اور نیوز کے ساتھ میں حسین حسین بلیٹن میں شامل کرتے ہیں کچھ علاقائی خبریں۔ بیورو چیف پنجاب ملک نثار احمد کھوکھر سے سرگودہ عالمی شہرت یافتہ ماہر نفسیات، دانشور اور محقق پروفیسر ڈاکٹر شمس الدین احمد خان نے کہا ہے کہ آزادی کی قیمت محکوم قومیں ہی سمجھ سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو لاتعداد نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے۔ جشن آزادی اظہار تشکر ہے۔ نوجوانوں میں حب الوطنی جذبہ اجاگر کرنے کے لیے مسلسل محنت اور ریاضت کی ضرورت ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ریڈیو پاکستان کے پروگرام دانش کدہ میں گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر ہارون الرشید، تبسم، فیروزہ گل، نور العین، ہیرا اقبال، آمنہ رفیق، رانا ناصر سعید، عمران گوئندی اور سلیم بھٹی نے بھی اظہار خیال کیا۔ شمس الدین احمد خان نے مزید کہا کہ ہفتہ آزادی کا آغاز ایک خوش آئند اقدام ہے۔ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم آزادی کے تحفظ کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح اور ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی بصیرت نے پاکستان کا حصول ممکن بنایا۔ ہمیں وطن عزیز کی بقا اور سلامتی کے لیے ہمہ وقت خدمات انجام دینا ہوں گی۔ ڈاکٹر ہارون الرشید تبسم نے کہا ہے کہ پاکستان خداوندی عطیہ ہے، یہ ہماری منگوں کا ترجمان ہے اور مشاہیر کا عطا کردہ صاحبان ہے۔ محترمہ فیروزہ گل نے کہا کہ مسلمانان برائے اعظم پاک و ہند نے حصول آزادی کے لیے تاریخی خدمات انجام دی۔ پاکستان ان قربانیوں کا ثمر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد اور خود مختار ملک عطا کیا۔ ہم وطن عزیز کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ فیروزہ گل نے ایک انگریزی نظم بھی پیش کی۔ آمنہ رفیق نے کہا کہ پاکستان کی ترقی کا راز تعلیم میں مضمر ہے۔ تعلیمی ترقی کے بغیر ہم پاکستان کو فعال اور خوشحال ملک نہیں بنا سکتے۔ ماناوالا سستا بازار کا اے سی لارہ اسلم کا اچانک دورہ۔ بازار میں تمام سہولیات جو قانون کے تمام تقاضے پوری کرتی ہے، ان مکمل فقدان ہونے پر اے سی لارہ اسلم کا بازار کا خصوصی جائزہ واضح رہے۔ یہ بازار 14 سال سے لگایا جا رہا ہے، لیکن نہ تو آج تک اس کا ریونیو متعلقہ بلدیہ کو پراپر دیا جا رہا تھا اور نہ ہی بازار میں قانون کے مطابق وہ تمام سہولیات ہی موجود تھیں جن کا تقاضا لوگ اور خصوصاً بازار میں دکانیں لگانے والے عرصہ دراز سے کر رہے تھے۔ اسی حوالے سے لوگوں کی شکایات پر آج اے سی لارہ اسلم اپنی پوری ٹیم کے ہمراہ سی او بلدیہ ماناوالا اس وقت بازار میں موجود ہیں۔ اس حوالے سے اے سی لارہ اسلم کا کیا کہنا تھا، جانتے ہیں رانا شہزاد کیسر کی اس رپورٹ میں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سی او ایم سی ماناوالا کے ہمراہ میں نے آج بدھ بازار کا وزٹ کیا ہے تاکہ ہم دیکھیں کہ جو ہماری این او سی کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کیا وہ پوری ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں۔ انفارچونیٹلی اس ٹائم موقع پہ کافی کمیاں ہیں اس بدھ بازار کے اندر، اور اسپیشلی جو ہے وہ سیکیورٹی کے کنسرنز ہیں ہمارے کچھ، جس کے لحاظ سے ہم نے جو بھی کنوینر ہیں بدھ بازار کے ان کو ہم نے انٹیمیٹ کر دیا ہے کہ وہ اگلے بدھ سے پہلے یہ اپنی تمام ریکوائرمنٹس پوری کریں۔ اگر نہیں کریں گے تو نہ صرف ان کا این او سی کینسل کیا جائے گا بلکہ یہ بدھ بازار بھی ہم نہیں لگانے۔ جی محترمہ، یہ بتائیے گا کہ کیا این او سی جو 2 سال سے جاری تھا کیا وہ پہلے کینسل کر دیا گیا ہے؟ ہاں جی، جو پچھلا جاری شدہ این او سی تھا وہ اس بات پہ کینسل کر دیا گیا کہ اس کی ریکوائرمنٹس پوری نہیں کی گئیں، اور اب جب تک ریکوائرمنٹ ساری موجود نہیں ہوں گی نیا این او سی جاری۔ اگر آئندہ ہفتے تک یہ ریکوائرمنٹ پوری نہیں کرتے تو اس کا کیا ہوگا آپ کا رد عمل؟ جی بالکل، یہ بدھ بازار نہیں لگے گا۔ ہمارے جو سی او ایم سی ہیں وہ خود موقع پہ آ کے چیک کریں گے، اگر ان کے بقول یا ان کے جو بیسٹ انڈرسٹینڈنگ کے اندر لیگلی انہوں نے تمام اپنی ریکوائرمنٹس جس حد تک پوری کر سکتے ہیں کی ہوں گی تو بالکل پھر ہم الاؤ کریں گے۔ آج آپ نے یہاں وزٹ کیا ہے تو آپ نے کیا دیکھا ہے کہ یہ جتنی آپ یہاں پر شاپس آپ کو نظر آئی ہیں کیا اس کے مطابق بلدیہ کو اس کے حساب سے ریونیو بھی اکٹھا ہو رہا ہے؟ یہ جی اس کا سروے ہم آج فریش کروا رہے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کتنی شاپس ہیں اور بلدیہ کو ریونیو کتنا آ رہا ہے۔ اس لیے آج میرا وزٹ بھی اسپیسیفکلی اسی چیز کے لیے تھا، تو ہم انشور کریں گے کہ ہم تمام اسٹالوں کو جو ہے وہ پراپر ڈاکیومنٹ کریں اور ایک ایک کا رینٹ ہمارے پاس ہے۔ تھینک یو۔ ٹنڈو محمد خان سے اشفاق حسین کو پاک۔ ٹنڈو محمد خان پھلی کے نال دریائے سندھ سے نکلنے والی سب سے بڑی نہر میں کبھی بھی شگاف پڑ سکتا ہے۔ شگاف کی وجہ سے متعدد گاؤں پانی کی زد میں آ سکتے ہیں۔ 2010 میں بھی شگاف پڑنے کی وجہ سے ہزاروں ایکڑ زرعی زمین اور متعدد گاؤں پانی کی زد میں آئے تھے اور کروڑ روپے کا نقصان ہوا تھا، لیکن ایریگیشن عملے کی طرف سے نہ کوئی بند پہ نہ ہی کوئی عملہ موجود ہے اور نہ ہی بند کی مرمت کی گئی ہے۔ گاؤں والوں نے شدید نعرے بازی کی اور حکومت وقت سے مطالبہ کیا فوری عملے کو تعینات کر کے بند کی مرمت کی جائے۔ اس پہ مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندہ اشفاق حسین۔ جی اشفاق حسین، تفصیلات سے آگاہ کیجیے۔
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ टनौन खान के नवाई गांव सब डिवीज़न जलालानी में, जहां पे दरियाए सिंध से निकलने वाली फुलेली नहर है, जिसमें 2010 में भी एक बहुत बड़ा शिगाव पड़ा था, जिसके ज़ेर आब कई मुतअद्दिद गांव आए थे, लेकिन नाअहल इंतज़ामिया की तरफ से कोई भी यहां पे पेचिंग का या कोई ऐसा काम नहीं किया गया है जिसकी वजह से इन गाँव वालों को चैन की सांस मिल सके। इस वक्त हमारे साथ एक गाँव वाला मौजूद है, आइए इनसे मालूम करते हैं किस वजूहात की वजह से यहाँ पे कोई भी इंतज़ामिया का अमला नज़र नहीं आ रहा। हमारा गांव जो है जम्मू खास के लिए इधर पहले भी 2 मरतबा जो है पानी की नहर की वजह से ये डूब गया था। 2010 में तो बड़ी तबाही मचा दी थी, उससे पहले भी इसने कट मारा था, पिछले साल ही मारा था। इरिगेशन की नाइल यही है कि अभी तक इधर पैचिंग नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, और इधर आप गुनी की जो लहरें वो देख रहे हैं, किस टाइम भी ये गारा पड़ सकता है। और ये डूब के इधर 250 घर है, हमारे 250-300 के लगभग घर हैं, इधर छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर उनकी कुछ होती है, उनकी एफआईआर किस पे कटेगी? हम यही कहना चाहते हैं कि हमारा मेहरबानी करें, हमारा मुतालबा करें। हम पहले से डूब गए, हमारी ज़राए जो है वो तबाह हो गई है। अभी खाने पीने के लिए हमारे कुछ नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा लगी पे, ये नुकसान होगा, हम कहाँ जाएंगे? इधर कोई रिलीफ ही हमें नहीं मिलता है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं, मेहरबानी करें हमारा मसला हल किया जाए। जी बिल्कुल, आपने गांव वालों का मौक़िफ़ सुना। गांव वालों का यही कहना था कि 200 से 250 घर हैं, लेकिन इंतज़ामिया की तरफ से हमें कोई भी अमला नज़र नहीं आ रहा। फौरी तौर पे यहाँ की पैचिंग करा के और अमले को तैनात किया जाए, ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से निपटने के लिए अमला मौजूद होना चाहिए। जी खुशाब से हमारे नुमाइंदा बाबा मोहम्मद रमज़ान की रिपोर्ट के मुताबिक चोरी की वारदातों में मुलव्वस शमो गैंग गिरफ्तार। तफसीलात के मुताबिक DPO खुशाब शाइस्ता नतीम की जानिब से वादी सोन नौशहरा और गिरदनवा में चोरी की वारदातों में मुलव्वस मुलज़मान की गिरफ्तारी के लिए SHO नौशहरा इंस्पेक्टर इमरान सदीक की सरबराही में बनाई जाने वाली टीम की शानदार कार्रवाई। SHO थाना नौशहरा ने अपनी टीम के हमरा दिन रात मेहनत और कोशिशों के बाद झेल 3 मुलज़मान पर मुश्तमिल शमो गैंग को टेक्निकल बुनियादों पर काम करते हुए गिरफ्तार कर लिया। मुलज़मान के कब्जा से चोरी शुदा लाखों रुपए मालियत का माल मसरूका बरामद कर लिया, जबकि वारदातों में इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ी भी बरामद। DPO खुशाब ने मुलज़मान की गिरफ्तारी पर पूरी टीम को तारीफ़ इस्नात और नकद इनाम से नवाजा। रिपोर्ट खुर्रम शहजाद सिब्बी बलोचिस्तान ज़िला इंतज़ामिया मुसाफिरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम ना कर सकी। आए रोज़ चोरी की वारदातों में इजाफा होता जा रहा है। NHA 65 पर चोर डाकुओं का राज बरकरार होने के बायस मुसाफिर अपने नकदी और कीमती जानों से महरूम होने लगे। गुज़िश्ता शब बख्तियाराबाद नेशनल हाईवेज N65 पर डाकुओं ने लेवीज थाना बख्तियाराबाद की हदूद जखड़ा के मुकाम पर मसला डाकुओं की जानिब से मुसाफिर कोच पर फायरिंग की गई। मसला डाकुओं की फायरिंग के बायस गाड़ी के शीशे टूटने की वजह से ड्राइवर और मुसाफिर जख्मी हुए। लेवीज राय के मुताबिक मुसाफिर कोच कोयटा से नवाब शाह की जानिब जा रही थी। वाक़ई इत्तला मिलते ही SP हाईवे पुलिस हाजी अब्दुल अजीज सरबराह अपनी टीम के हमरा पहुंच गए। ट्रांसपोर्टर हजरात की जानिब से एहतजाजन रोड को ब्लॉक किया गया और ट्रैफिक मुअत्तल रही। डिप्टी कमिश्नर खिटी और डिप्टी कमिश्नर सिब्बी से कामयाब मुज़ाकरात के बाद रोड को तमाम ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। वाज़िह रहे कि एक हफ्ते में ये दूसरी मरतबा डाकुओं की जानिब से मुसाफिर कोच पर फायरिंग की गई। कुछ दिन पहले लेवीज थाना बाला नाड़ी की हदूद दोसा लाड़ू के मुकाम पर मुसल्लह डाकुओं की जानिब से मुसाफिर कोच पर फायरिंग का वाक़या पेश आया था। अब रुक करते हैं पीर महल का। हमारे नुमाइंदा रफाकत चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल नदीम बलोच की जश्न आज़ादी की तकरीबात भरपूर अंदाज में मनाने की हदायत। नदीम बलोच ने मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जश्न आज़ादी की तकरीबात को मिली जोश और जज्बे से मनाया जाएगा। घरों की सजावट के मुकाबला जात कराए जाएंगे। जो शहरी अपने घर को ज़्यादा खूबसूरत तरीके से सजाएगा, इसको पहला इनाम 25,000 रुपये, जबकि दूसरे नंबर पर आने वाले को 20,000 रुपये, तीसरे नंबर पर आने वाले को 15,000 रुपये इनाम दिया जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर नदीम बलोच ने कहा है कि जिंदा कौमें अपनी आज़ादी के जश्न को धूमधाम से मनाती हैं। इस मौके पर अंजुमन ताजरान ने भी इंतज़ामिया के शाना बशाना जश्न आज़ादी मनाने का अज़म जाहिर करते हुए कहा, बाज़ारों को झंडियों, परचमों और बरकी कुमकुओं से रोशन करते हुए सजाया जाएगा। ऑन न्यूज़ कमीर सिटी मोहम्मद नईम सरवर चौहान साहिवाल बोर्ड साल 2023 में मसाले ज़िक्रिया स्कूल कमीर की पोजीशन होल्डर तलबा के एहसास में एक पुरवकार तकरीब तकसीम इनामात। मीर शरीफ में मिसाली ज़िक्रिया स्कूल कमीर के तलबा के एहसास में साहिवाल बोर्ड में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तलबा में इनामात तकसीम किए, जिसमें साहिवाल बोर्ड में अव्वल पोजीशन हासिल करने वाले तालिब इल्म सकलैन मुश्ताक, जिसने 1100 में से
1083 नंबर हासिल किए। मिसाल ज़िक्र स्कूल ने इस बच्चे के लिए 10,000 कैश इनाम समेत मुकम्मल अखराजात समेत दीगर तमाम तालीमी अखराजात उठाने का भी ऐलान किया। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी डॉक्टर नवीद असमत, कंट्रोलर इम्तहानात इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन साहिवाल और मैडम डॉक्टर राबिया अख्तर, सेक्रेटरी साहिवाल, बच्चों के वालिदैन और मोअज़्ज़िज़ीन इलाका ने शिरकत की। आखिर पर मेहमान ख़ुसूसी ने पोजीशन होल्डर्स में इनामात तकसीम किए और मिसाल स्कूल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के जुमला मुंतज़मीन को बेहतरीन कारकर्दगी पर मुबारकबाद दी और खराज तहसीन पेश किया। तहसील रिपोर्टर सेवन शरीफ मोहम्मद हनीफ शाहानी, कोटरी अंजुमन गुलामान कलंदर वेलफेयर की मरकजी स्टूडेंट टीम की जानिब से हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैहा की नगरी में माहवार 21वीं महफिल कसरे दरूद शरीफ मुनक़िद की गई, जिसमें करोड़ों दरूद शरीफ और ख़त्म कुरान की इज्तिमाई दुआ मांगी गई। दुआ अंजुमन गुलामान कलंदर वेलफेयर के सरपरस्त आला साईं सैयद गुलाम हैदर शाह कलंदरी ने मांगी, जिसमें सेवन, दादू, जामशोरो और सिंध के मुख्तलिफ शहरों से बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। महफिल में नात ख्वानी भी की गई। आए हुए मेहमानों और साल के 12 महीने दूर शरीफ का काम करने वाले वर्कर्स में साईं सैयद गुलाम हैदर शाह कलंदरी की लिखी हुई किताब रूमी डी औताक इनामात के तौर पर तकसीम की गई। इस मौके पर खिताब करते हुए साईं सैयद गुलाम हैदर शाह कलंदरी ने कहा है कि सेवन की सरजमीन से कई सौ सालों से इंसान ज़ात की इस्लाह की जा रही है। साईं ने कहा है कि अंजुमन गुलामान कलंदर का मकसद है जहाँ ज़िक्र खुदा हो वहाँ ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बुलंद किया जाए। दरूद शरीफ की महफिलों में कसरत दरूद पाक का सबक मिलता है। कसरत दरूद शरीफ से कल्ब मुनव्वर होता है। इस मौके पर अंजुमन गुलामान कलंदर जमात से वाबस्ता ग्रुप इंचार्ज और दीगर शोबाजात के इंचार्ज भी मौजूद थे। आखिर में आए हुए तमाम मेहमानों को लंगर खिलाया गया। खबर शामिल करते हैं लियाकतपुर से। हमारे नुमाइंदा तारिक महमूद शाद की रिपोर्ट से लियाकतपुर 10वां आल पाकिस्तान जश्न आज़ादी फ्लड लाइट फुटबॉल इन्विटेशन टूर्नामेंट आज 5वां दिन के मेहमान ख़ुसूसी राना एहसान इलाही शानी, हाजी असलम खान सऊदी अरब और उस्ताद साजिद जट हैं। मेहमान ख़ुसूसी राना एहसान इलाही ने कहा है कि इस अफरा तफरी के दौर में बेहतरीन इंतजाम किए। जिस शहर में इस तरह के नौजवान हों वहाँ के नौजवान खिलाड़ी ग्राउंडों को आबाद करते हैं और अपने शहर का नाम रोशन करते हैं। मैं इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे आज मैच देखने का मौका दिया। इंशाल्लाह लियाकतपुर में इस तरह के इवेंट होते रहेंगे। खिलाड़ियों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ग्राउंड में खिलाड़ी एक दूसरे का ख्याल रखें और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करें। मैच अल वहीद स्पोर्ट्स फुटबॉल क्लब अलाहाबाद और अल शहबाज फुटबॉल क्लब कच्चा खूह की टीमों के दरमियान खेला गया। अल वहीद क्लब अलाहाबाद ने 4-0 से जीत लिया और आज के मैच की सरपरस्ती आसिफ रशीद रहमानी, एडवोकेट मोहम्मद यूसुफ राना, मोहम्मद हुसैन सदर अंजुमन ताजरान क्लॉथ मर्चेंट ने की। आज के मैच की कंपेयरिंग पाकिस्तान के नामवर कंपेयर अख्तर आकाश ने की। खबर शामिल करते हैं चन्योट से। हमारे नुमाइंदा सईद मुज़ाहिर बादशाह की रिपोर्ट के मुताबिक चन्योट पुलिस का जराइम पेशा नासिर के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन। DPO अब्दुल्ला अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 14 डिकेट गैंग्स समेत डकैती राहसनी की वारदातों में मतूब 60 से जायद मुलजमान गिरफ्तार। मुलजमान के कब्जा से 1 करोड़ 15 लाख रुपए से जायद मालिक का माल मसरूका बरामद। डिकेट गैंग्स में जाफर, अली असगर, सलीम उर्फ सलीमू, नासिर उर्फ नासरी, शहबाज, अलादिता उर्फ दित्तू, शर्जील उर्फ शर्जीलू, काबिल उर्फ काबिली, गुलाम शबीर, ताहिर उर्फ ताहिरी, रिजवान उर्फ रजू, सरवर उर्फ मंगू गैंग शामिल हैं। मुलजमान के कब्जा से 8 भैंसें, गायें, 32 बकरे और दीगर माल मवेशी बरामद। मुलजमान के कब्जा से मसरूका ट्रांसफार्मर, तारें, घरेलू सामान, मोटरसाइकिल, तलाई जेवरात वगैरह बरामद। सिटी सर्कल पुलिस ने 67 लाख रुपए से जायद, लालिया सर्कल पुलिस ने 39 लाख रुपए से जायद, भवाना सर्कल पुलिस ने 10 लाख रुपए से जायद बरामदगी की। पुलिस ने डकैती, राहसनी, चोरी के 70 से जायद मुकदमात यकसू किए। 256 मुजरमान इश्तहारी, 92 अदालती मफरूर गिरफ्तार किए गए। 129 मंशियात फरोश गिरफ्तार। 18 किलो से जायद चर्च से हीरोइन, 650 लीटर से जायद शराब बरामद। नाजायज असला बरामद होने पर 70 मुलजमान गिरफ्तार। 55 पिस्टल, 10 बंदूकें, दीगर असला, गोलियां बरामद। DPO ने मसरूका बाज़याफ्ता माल मदियान के हवाले किया। मदियान ने पुलिस का शुक्रिया अदा किया।
शेखपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान उलमा कौंसिल के ज़िला सदर हाफिज़ एहसान अल्लाह ज़िया ने कहा है कि तहफ़्फ़ुज़ नामूसे रिसालत सहाबा अहले बैत बिल की मंजूरी से पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बसने वाले मुसलमानों की दिली खुशी और मसरत हासिल हुई। तहफ़्फ़ुज़ नामूसे रिसालत सहाबा और अहले बैत बिल की मंजूरी से मुल्क में फ़िरका वारियत का खात्मा होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा और अहले बैत पर अब कोई बदबख्त हमला नहीं कर सकेगा। अब जो भी सहाबा इकराम और अहले बैत के खिलाफ गुस्ताखी करेगा वो अब इस नए बनने वाले आइन के तहत सज़ा का हकदार होगा। शेखुपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लॉर्ड्स विंग के नायब सदर और मरकजी अंजुमन ताजरान के लीगल एडवाइज़र अहमद हसन पाशा एडवोकेट ने कहा है कि चेयरमैन PTI की नाअहली मकाफात अमल है। इलेक्शन कमीशन ने भी नाम नेहाद सादिक और अमीन की नाअहली का नोटिस जारी करके इसकी असलियत कौम पर वाज़िया कर दी। तोशाखाना केस और इलेक्शन कमीशन से नाअहली के बाद PTI इंतखाबात में भी माजी का हिस्सा बन जाएगी। इमरान खान का गुरूर और तकब्बुर इसे ले डूब लीगी क़यादत को ताहयात नाअहल करवाने वाला आज खुद निशाने इबरत बन चुका है। मियां नवाज शरीफ को नाअहल करने की साजिश करने वाला आज खुद मकाफात अमल का शिकार हो चुका है। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़िला नायब सदर चौधरी अजहर महमूद वर्क ने कहा है कि पूरी कौम आगाह है कि PTI ने सियासत का लिबादा ओढ़कर जमहूरी अमल सबूताज किया और नफरत और इंतशार के बीज बोए। तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए वज़ारत उज़्मा से बेदखल होने के बाद इमरान खान ने अपोजिशन लीडर का किरदार अदा करने की बजाय तखरीब कारी का रास्ता अख्तियार किया और आज अपनी करप्शन की वजह से जेल में बंद है, जिसे सियासी इंतकाम का नाम देकर PTI अपने चेयरमैन के जुर्म पर पर्दा नहीं डाल सकती। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वेलफेयर विंग के जनरल सेक्रेटरी और सदर सोशल वेलफेयर कमेटी डिस्ट्रिक्ट जेल शेखुपुरा चौधरी गुलफाम रियाज वर्क ने कहा है कि इत्तेहादी हुकूमत ने 16 माह में पाकिस्तान को माशी बदहाली और अवाम को बदतरीन गुर्बत का शिकार किया। मुजरिमों की इस इम्पोर्टेड सरकार के हाथ आइन और जमहूरियत के बेईमाना खून से रंगे हैं। आइन और कानून की धज्जियां उड़ाने और जमहूरियत का गला घोंटने वाले इस टोले को कौम माफ़ नहीं करेगी। इंतखाबात में अवाम इनसे वोट की पर्ची के जरिए बदला लेगी और PTI को कामयाब करके पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद रखेगी। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से, शेखुपुरा डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा सरमत तैमूर ने असिस्टेंट कमिश्नर लारेब असलम के हमरा अचानक DHQ अस्पताल का दौरा किया और सहूलियात का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ख़ुसूसी हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा सरमत तैमूर ने अस्पताल की एमरजेंसी ICU और CCU समेत दीगर वार्ड्स का दौरा किया और अस्पताल में इलाज मुआलजा की सहूलियात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने मुख्तलिफ वार्ड्स में ज़ेर इलाज मरीजों की इयादत की और इनसे इलाज मुआलजा की सहूलियात के मुतालिक दरियाफ्त किया। डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल में सफाई सुथराई के इंतजाम और डॉक्टर्स पैरामेडिकल स्टाफ की हाजिरी रजिस्टर भी चेक किए। इस मौके पर MSDHQ अस्पताल डॉक्टर फरजाद भट्ट ने डिप्टी कमिश्नर को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि हुकूमती हिदायत के मुताबिक अस्पताल में इलाज मुआलजा की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। ज़ेर इलाज मरीजों और आउटडोर में चेकअप के लिए आने वालों को अद्वियात भी मुफ्त फराहम की जा रही हैं। इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक मंगल को वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि पाकिस्तान एक मजबूत और कामयाब जनूब मशरक़ी एशिया का ख्वाहा है जो पूरे बराज़म के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए अहम है। वज़ीर ख़ारजा ने जनूब मशरक़ी एशियाई ममालिक की तंजीम की 56वीं सालगिरह के मौके पर एक पैगाम में कहा है कि हम जितने ज़्यादा जुड़े हुए और मुत्तहिद होंगे, हम अपने इज्तिमाई चैलेंजों पर काबू पाने और एक ख़ित्ते के तौर पर मिलकर तरक्की करने में इतने ही ज़्यादा काबिल होंगे। पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत की जानिब से यूनियन के अरकान को मुबारकबाद पेश करते हुए FM बिलावल ने कहा है कि इनके मुल्क ने एशिया पैसिफिक के ममालिक के साथ दोस्ती और ताउन के आसियान के विज़न का इश्तराक किया है। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इंसाफ लॉर्ड्स फोरम खैबर पख्तूनख्वा ने पीर को सुप्रीम कोर्ट की पेशावर रजिस्ट्री में दरख्वास्त दायर की, जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की सज़ा का अज़ खुद नोटिस लेने की दरख्वास्त की गई। इस्लामाबाद की अदालत उज़्मा में दरख्वास्त ILF के सूबाई चैप्टर के जनरल बॉडी इजलास के बाद दायर की गई, जिसकी सदारत सूबाई सदर और सीनियर वकील काजी अनवर ने सुप्रीम पेशावर रजिस्ट्री में की। ILF खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान शाह फैसल अलियास ने कहा है कि फोरम ने हफ्ता को इस्लामाबाद के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की जानिब से इमरान खान की सज़ा और गिरफ्तारी के खिलाफ मुतफ़िका तौर पर करारदाद मंजूर की।
ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सलाहियतों में इजाफे और डिजिटल फॉरेंसिक लैब के क़याम के लिए मदद की पेशकश की है ताकि डिजिटल कर्ज देने वाली ऐप्स के ज़रिए होने वाली गलतियां और खिलाफ वर्जियों की जांच की जा सके। FIA के एडिशनल डायरेक्टर जनरल अहमद इसहाक जहांगीर ने मंगल को SECP हेड ऑफिस का दौरा किया और इसके चेयरमैन आकिफ सईद से मुलाकात की। इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मंगल को सहाफ़ियों, मीडिया वर्कर्स, फनकारों और तकनीकी वसाइल के लिए वज़ीर-ए-आज़म हेल्थ प्रोग्राम और पाकिस्तान कोड वफाकी कवानीन का डिजिटल ज़ख़ीरा, एक मोबाइल ऐप और वेबसाइट का आगाज़ किया। हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड प्रोग्राम के तहत सहाफ़ी, मीडिया वर्कर्स, फनकार और तकनीकी वसाइल मुल्क भर के 1200 अस्पतालों में 1.5 मिलियन रुपए की सालाना कॉर्पोरेट अस्पतालों में 1.5 मिलियन रुपए की सालाना कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस के साथ आलमी मयार की सेहत की सहूलियात मुफ्त हासिल कर सकेंगे। इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मंगल को तरक्याती इक़दामात की एक सफ़ की निकाब कुशाई की जिसमें ट्यूबवेल, सोलराइजेशन, सहाफ़ियों के लिए सेहत का प्रोग्राम और रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सड़कों के मंसूबे शामिल थे। इन निकाब कुशाइयों के दरमियान शहबाज ने पाकिस्तान को गुर्बत से निकालने, कर्ज़ों को ख़त्म करने और आने वाले इंतखाबात में मौका मिलने पर इसे एक खुद मुख्तार और मजबूत कौम में तब्दील करने के अज़म का अदा किया। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे और रावलपिंडी रिंग रोड के तोसी और बहाली के लिए संग बुनियाद रखने की तकरीब के दौरान, जिसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा समेत मुअज़्ज़ज़ीन ने शिरकत की। शहबाज ने इन मंसूबों की तस्वीराती अहमियत पर जोर दिया। इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मंगल को सहाफ़ियों, मीडिया वर्कर्स, फनकारों और तकनीकी वसाइल के लिए वज़ीर-ए-आज़म हेल्थ प्रोग्राम और पाकिस्तान कोड वफाकी कवानीन का डिजिटल ज़ख़ीरा, एक मोबाइल ऐप और वेबसाइट का आगाज़ किया। हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड प्रोग्राम के तहत सहाफ़ी, मीडिया वर्कर्स, फनकार और तकनीकी वसाइल मुल्क भर के 1200 अस्पतालों में 1.5 मिलियन रुपए की सालाना कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस के साथ आलमी मयार के सेहत की सहूलियात मुफ्त हासिल कर सकेंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।